So this experiment, which is the last unit or last topic for this particular kind of analysis, that is the Coulomb energy difference of mirror nuclei. So what is this mirror nuclei? Actually, there is a pair of nuclei. So we can have a set of nuclei. Means there are two nuclei, pair of nuclei, and they can become a mirror nuclei. Means most of the properties are same. Even the energy levels are quite same. Only one small difference in the energy, that is the Coulomb energy. Coulomb energy means that is concerned with the charge. That is the energy which is concerned with the protons, not with the neutron. So if I assume that I have one set of nuclei, for example, let us take example, वहां से ज़्यादा clear होगा. This one, helium, which is having 2 protons and 3 total mass number, that is 1 neutron is there. And its mirror counterpart is hydrogen, which is 3, 1 and 2. So their dimension is same because A is same. दोनों का A क्या है? 3 है. तो दोनों में हमारा अगर if A is same and we know that radius is equal to r naught a to the power of 1 by 3. It doesn't depend upon the number of neutron or number of proton. तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से डिसाइड नहीं होता रेडियस, रेडियस ए से डिसाइड होता है, दैट इज n plus z से डिसाइड होता है. So if r is equal to this value, then the radius must be same, and within that radius we have a distribution of 2 protons for one case and 1 neutron, and there is 1 proton and 2 neutron. And what is the biggest difference that we can see in these two nuclei? That there is only 1 proton, so there is no repulsion energy kind of thing. दूसरा प्रोटॉन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन में क्या रिपल्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. There is only one proton that has to occupy within that particular volume. And when you have 2 protons, then there is a repulsion. Means the energy of the nucleus that will differ in these two cases will only be concerned with this one, that is Coulomb energy. तो अगर हम कूलम एनर्जी निकाल लेते हैं दोनों न्यूक्लियस के लिए, पहले के लिए भी निकाल लेते हैं, इसके लिए भी निकालते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट वी विल कॉल इट एज डेल्टा ईसी. दैट इज कूलम एनर्जी kind of quantity, which is actually the kind of energy which is required to make a sphere of certain charge value. तो वो सेम वही वैल्यू है जो आप किसी भी स्फीयर को डिजाइन करते हो, उसमें आप चार्ज स्टार्ट करते हो पुट करना, एंड यू जस्ट कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी यू आर रिक्वायर्ड टू मेक दैट पर्टिकुलर थिंग ऑफ अ चार्ज बॉडी. तो वो कैलकुलेशन ये में करना और कुछ नहीं है. तो वो कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं. आई विल यूज दैट पर्टिकुलर इक्वेशन दैट यू ऑलरेडी नो बाय इलेक्ट्रोस्टैट. One more thing that you have to remember, that whenever you, अब दोनों न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, one of the proton means in this case one of the proton has been converted into neutron. For this case one of the proton is converted into a neutron when we are talking about the mirror pair. मिरर पेयर में होता है क्या है, एक में एक प्रोटॉन कन्वर्ट होकर के न्यूट्रॉन बन जाता है, दैट इज अ मिरर पेयर. ये कन्वर्जन तो ओके है, बट ये कन्वर्जन किस केस के लिए अलाउड है? कैन वी से दैट Np and uranium, this is 238 and this is also 238 and this number is 93 and this number is 92. तो प्रोटॉन तो इसमें भी एक कम है, but let me just see ki what is yes, okay, this one is 145 and this is 146. So what is happening when you convert one proton from this one into a one neutron? प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे, इनको हम मिरर पेयर नहीं मानेंगे. यहाँ पे भी वही चीज है, इक्वेशन अगर देखोगे तो ए सेम है, एक प्रोटॉन आपका एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज ओके.
एज पर कन्वर्जन थिंग इट इज ओके कि ये दोनों मिरर न्यूक्लियाई जैसे ही कुछ बिहेव कर रहे हैं. बट व्हाट विल हैपन in this case the proton which is converted into a neutron, proton कौन सा है 93rd proton, that is converted into 146 आ गया ना, तो ये 146th न्यूट्रॉन. प्रोटॉन का नंबर ये था और न्यूट्रॉन का नंबर ये है, यानी प्रोटॉन जब कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में तो नंबर उसका ये है और वो उसको यहाँ पे जाना है, इस प्लेस पे जाना है. So one thing I will introduce, that is orbital structure of the nucleus. बट हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में जब शेल मॉडल करेंगे न्यूक्लियस का. अभी हम सिर्फ ये इमेजिन करते हैं कि देयर इज अ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ दीज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक एज यू हैव फॉर द इलेक्ट्रॉन्स. यानी इलेक्ट्रॉन्स में जो ऑर्बिटल पिक्चर आपने देखा है कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड सो ऑन, the same or similar kind of picture we have in the nucleus also. तो न्यूक्लियस में भी ये पिक्चर बने हुए हैं. इट मीन्स अगर ऑर्बिटल पिक्चर हमें पता है तो दिस नंबर will have different energy value and this number will have different energy value. Agree? एक 2s का इलेक्ट्रॉन और एक 5d का इलेक्ट्रॉन, दोनों में एनर्जी का डिफरेंस डिफरेंट होगा, दोनों में एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होगी. Is it clear? Yes, sir. So we have to means conversion is allowed. यहाँ पे हम conversion करके दिखने में लग रहा है कि mirror nuclei, but we cannot treat them as a mirror nuclei. हमें मिरर न्यूक्लियर वही ट्रीट करना है जिसमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए व्हेन यू कन्वर्टिंग वन प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन. तो आप जब ये कन्वर्जन कर रहे हो तो उस कन्वर्जन में एक सेकंड बेटा, इट मीन्स वी हैव टू ऑनर दैट ऑल्सो कि कन्वर्जन तो पॉसिबल है, कन्वर्जन कर सकते हो, बट कन्वर्जन उसी का करो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कन्वर्जन जब भी हो रहे हैं तो यू हैव टू ट्रीट कि दोनों के दोनों आपके सेम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पे हो. अब ऊपर वाले केस देख लो, बहुत ही क्लोज है. 1s में नॉर्मली 2 अलाउड है तो यहाँ पे भी हमारा 1s में ही जाएगा, तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा है, तो दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ मिरर न्यूक्लियाई क्योंकि देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ कन्वर्टेड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, हमारे पास और भी एग्जांपल है, ये तो पॉसिबल नहीं है बट हमारे पास एग्जांपल क्या है, दिस वन वी हैव कैल्शियम which is 39, this one 39 not 41, 40 वाला नहीं है इसमें. This is 39 potassium and we have 19 and 20. Again there is one conversion and if you see the picture they are the same thing, कोई फर्क नहीं है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा. We have nitrogen which is 13 not 14, 6 and that is being treated with carbon 13 7 sorry 6 and 7, 6 and 7, this is 13. So they can be a mirror nuclei, but this cannot be a mirror nuclei. तो हमें ऐसे न्यूक्लियाई ढूंढने हैं, चाहे आइसोटोप हो, चाहे स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो. वी हैव टू सेलेक्ट दोज न्यूक्लियाई इन व्हिच द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज व्हेन यू कन्वर्ट वन प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन. ठीक है, ओके. नाउ द फॉर्मूला फॉर ईसी. ईसी का फॉर्मूला क्या होगा? ईसी जो आप कैलकुलेशन करोगे अगर करना चाहते हो तो ईसी व्हिच इज द कूलम एनर्जी for a given nuclei with z number of protons. यानी आप उस न्यूक्लिया एक पर्टिकुलर रेडियस है उसका, एक चार्ज स्फीयर हम अज्यूम कर रहे हैं, उसको अज्यूम क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर है. ये भी एक अजम्पशन ही है, न्यूक्लियर नेवर अ स्फीयर, उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता रहता है. तो दे आर समथिंग लाइक अ elliptical kind of thing, elliptical or that is a three-dimensional elliptical, so that is called ellipsoid. तो nucleus are not a perfect sphere, they are ellipsoid.
तो वो भी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसका भी करेक्शन फैक्टर इंक्लूड होगा बाद में, बट अभी हम वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, परफेक्ट स्फीयर of a radius r and we are putting z number of proton, then what is the stored electrostat energy in that particular system? So that will be roughly equal to 3/5. ये आपने किया भी होगा डेरिवेशन कभी ना कभी इलेक्ट्रोस्टैट में। 4 pi epsilon naught q square is the total charge divided by r. r is the radius. ठीक है, ये हमारा डेल्टा इसी होता है किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लिया के लिए, यानी जो उसमें कूलम एनर्जी होगा, यानी कूलम रिपल्शन, उसी को तो आपने ओवरकम करके प्रोटॉन को उसके अंदर डाला है, तो उतना एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो, तो वो एनर्जी इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइक अ स्टोर्ड इन द दैट पर्टिकुलर sphere when you are placing those charges. So the difference between two nuclei which are mirror nuclei, means difference between two nuclei which are mirror nuclei, that is pair of nuclei, pair of mirror nuclei, this delta EC will be equal to 3/5 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। दोनों में सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, या आर सेम होगा या आर डिफरेंट होगा? क्या डिफरेंट होगा दोनों न्यूक्लियर के केस में? कूलम एनर्जी डिफरेंट होगा, रेडियस डिफरेंट होगा? रेडियस सेम होगा सर। Radius will depend upon the A, so that will be same. So you can say this is Q1 square and minus Q2 square. This is 2, I will put dash, 1 dash and this one. So these are the two pair of nuclei. So this will be 3/5 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon r को common ले लो, and this we will treat as a which is having a z higher value and z lower value. So this will be z square minus जो लोअर है उसका क्या होगा, z minus 1. एक ही तो प्रोटॉन्स का कन्वर्ट हुआ है, तो वी कैन राइट दिस वे. अच्छा e स्क्वायर भी आ गया, तो मैंने z लिखा है ना, सब यहाँ पे e स्क्वायर भी आ जाएगा, बिकॉज z और e मिल करके q बन रहे हैं, तो z मैंने अगर नंबर ले लिया तो आई हैव टू राइट द चार्ज आल्सो. Is it clear? It Yes, means this is 3/5 1 upon 4 pi epsilon naught e square, and I can also write r as r naught a 1/3. Can I replace these z's? Means अगर इक्वेशन को लिखना चाहो तो z square minus z square है ना, माइनस है -1 and plus 2z, यही होगा. This term is 2z minus 1. Is it okay? z square yes, cancel, yes, 2z sir. minus ये 2z है, ठीक है. So this is 2z, so this is 2z minus 1. Can this be replaced by a? Can we replace this 2 minus z by a or function of a? सिर्फ मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है. अगर रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो देयर इज नो फिजिक्स. क्या लिख सकते हैं 2z minus 1 को, यहाँ क्या लिख सकते हैं अगर a से रिप्लेस करना चाहें तो? a क्या है, n plus z होता है, Yes, sir. और मिरर पेयर्स हैं तो n हमेशा क्या है, z minus 1 plus z 2z minus 1. 2z minus 1 is nothing but equal to a. 2z minus 1 is nothing but it is equal to a. So this equation become 3/5 1 upon 4. ये क्लियर है कैसे किया हमने? अब आप a को ऊपर लेके आ सकते हो, नहीं 1 minus 1/3, so that will be a 2/3. It means this is the value. ये आपका कांस्टेंट है, या सॉरी यहाँ पे r नॉट भी है, ये आपका कांस्टेंट है और ये आपका वेरी करेगा. अब जैसे जैसे मिरर न्यूक्लियर डिफरेंट डिफरेंट पेयर लोगे तो A2 के लिए निकाल लो, A3 के लिए निकाल लो, A4 के लिए निकाल लो, 5 6 1, यू जस्ट कलेक्ट दोस, और सभी के लिए आपने दोनों पेयर के लिए आपने डेल्टा इसी कैलकुलेट कर लिया एंड यू जस्ट प्लॉटेड कि भाई प्लॉट करके देखते हैं क्या दिखेगा हमें.
So if you plot A 2 by 3 and delta EC, normally this delta EC in mega electron volt, फ्रैक्शन हो सकता है या टेंस ऑफ हो सकता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता, फ्रैक्शन और टेंस में होता है. तो नॉर्मली इफ यू टेक इट 2 एंड दिस इज 10, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का डिफरेंस होगा. एंड यू प्लॉट एंड यू विल सी that will follow a straight line. And you can find the slope, and from the slope you can find what? R naught. भाई हमारा एम यही है. हम हमेशा क्या कर रहे हैं, R इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 को हम जस्टिफाई कर रहे हैं, उसमें आर नॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूला वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है. यस, दिस इज बीइंग वैलिडेटेड. एंड आर नॉट इज दिस वन, 1.22 फॉर्मी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. तो पहले केस में हमारा 1.23 आया था, दूसरे में 1.25 आया, इसमें हमारा 1.22 आ गया. तो 1.2 समथिंग आ रहा है. एटलीस्ट हम अगर एक्सपेरिमेंट वेरी करते हैं तो 1.2 एंड समथिंग एल्स, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है. क्लियर? इज इट ओके टिल नाउ? Yes, sir. ओके. सो हाउ वी फाइंड दिस डेल्टा ईसी? हम डेल्टा ईसी कैलकुलेट कर, एक तो हमारे पास थ्योरेटिकल फॉर्मूला है कि हमने इसको चार्ट से कैलकुलेट कर लिया कि भाई स्फीयर है हमारा, इमेजिन कर लिया वो रेडियस का एक स्फीयर है पर्टिकुलरली. लेकिन नेचुरली तो होता नहीं है वो. नेचुरली क्या है? दैट इज नॉट अ स्फीयर, दैट इज हैड सर्टेन शेप. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन नेचुरली, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ईसी, कि कोई एक्सपेरिमेंट हम करके देखें, उससे हम डेल्टा ईसी इवैल्यूएट करें कि डेल्टा ईसी निकालेंगे कैसे. हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर लिया, हमें अज्यूम लगा कि भाई ऐसा कोई फॉर्मूला होगा, इसके आसपास का वेरिएशन होगा. तो मे बी सम करेक्शन 3/5 ना होकर के कुछ और नंबर हो जाएगा, बट दैट मे डिफर. तो नेचुरली व्हाट the method what we follow to find delta EC, there are two methods. How we find the delta EC, कि delta EC को हम निकालते कैसे. The first one is positron decay. Positron decay में क्या हो रहा है? What happens in positron decay? The proton convert into a neutron. ठीक है, the proton convert into a neutron. तो पॉजिट्रॉन डिके होने पे हमारा मिरर न्यूक्लियस जनरेट होता है, लेकिन हर एक पॉजिट्रॉन के लिए नहीं होगा. पॉजिट्रॉन आपका हैवी एटम में भी होगा, और हैवी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं प्लेस होंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. तो यू हैव टू टेक दोस पर्टिकुलर positron decay which is for the lighter nuclei, yani which have lesser value of A. So when you do this experiment, when you measure the when you see the experiment, then the maximum kinetic energy of particle which is positron, which is coming out from the nucleus, that is actually carrying the maximum energy difference. यानी पहले क्या था, आपके पास z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, अब उस न्यूक्लियस में z-1 नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो थोड़ा सा आपका कूलम एनर्जी डिक्रीज हो गया. जो डिक्रीज हुआ क्वांटिटी, दैट हैज बीन टेकन अवे बाय द पॉजिट्रॉन. And what we can say, the maximum kinetic energy of positron is nothing but it is delta EC. जो एक्सेस ऑफ एनर्जी थी ना, जब अरेंजमेंट दोबारा हुआ, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ, तो जब प्रोटॉन ज्यादा थे तो एक्सेस ऑफ एनर्जी था, कूलम एनर्जी. repulsion zyada tha. When it has decreased, the repulsion has decreased. So what the amount that has been being less in the coulomb energy, that amount is given to the positron. तो positron की जो maximum kinetic energy होगी, that will be your delta EC. ठीक है. Second case is you can do the for heavy atom. If you find a mirror nuclei, किसी isotope के साथ अगर आपको mirror nuclei का pair बनता हुआ दिख रहा है, what you can do experiment that you just bombard proton to certain element. Let us say, for example, in book it is given as boron. When you bombard this boron with a proton, you get carbon of 11. वो एक आइसोटोप है और वो बहुत ज्यादा डिके भी होता है. तो कार्बन 11 और it will release a neutron. So to do this reaction, when you bombard a proton to boron, that convert into carbon and release a neutron, which is not of a very high energy, but minimal, means it just release a neutron. To have this energy to be there,
the minimum kinetic energy of proton which is required to have this reaction, that will be equal to delta EC. इसमें भी क्या हो रहा है, आपने प्रोटॉन को इम्प्लांट किया है न्यूक्लियस में, जो प्रोटॉन को इम्प्लांट किया है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो एक न्यूट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो कार्बन के केस में यानी बोरॉन में आपके पास लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, कार्बन में आपके पास ज्यादा प्रोटॉन आ गए, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। तो वो डिफरेंस आपका डेल्टा ईसी से कैलकुलेट होगा। क्लियर? तो ये दो एक्सपेरिमेंट है विच यू कैन परफॉर्म एंड यू कैन मेजर, यानी नेचुरली यू कैन मेजर द डेल्टा ईसी। आपको कोई थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नेचुरली यू कैन मेजर डेल्टा ईसी फ्रॉम पॉजिट्रॉन डीके एंड बाय अ न्यूक्लियर रिएक्शन in which you bombard a proton to a certain element and it just release a neutron। ठीक है, क्लियर? उसके सर बाद हम आ जाते हैं। फर्स्ट हाँ केस बोलो। में न्यूट्र हाँ बोलो। सर फर्स्ट केस में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन रहा है, तो फिर न्यूट्रॉन का हाँ मास तो ज्यादा प्रोटॉन से, तो कुछ एनर्जी उसके पास भी चलेगी। तो न्यूक्लियस के अंदर मैंने ये कब कहा कि दूसरी एनर्जी नहीं होती है? कूलम एनर्जी कंट्रीब्यूशन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर एनर्जी। आई नेवर सेड कि उसके उसके पास दे द न्यूक्लियाई हैव 5 टाइप ऑफ एनर्जी, ओनली वन कूलम उसका एक पार्ट है, 5 पार्ट्स होते हैं। अगर आपने मे बी पता नहीं कितना आपने उसमें देखा होगा, आपने लिक्विड ड्रॉप मॉडल देखा सुना होगा या पढ़ा होगा थोड़ा, यस सर, थोड़ा। है ना? उसमें 3 कंपोनेंट है ना, वॉल्यूम, सरफेस एंड कूलम। Then you have a correction यस of सर। quantum mechanical correction to these energies, that is your asymmetric and your pairing term। तो जो बाकी का कंट्रीब्यूशन है ना वो ज्यादा है, कूलम का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। उसका रीजन है बहुत जेन्युइन रीजन है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पे डील करता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में चार्ज का कोई बेसिक रोल नहीं है। तो अगर मैं एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ ना, तो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा है। इन सारे के जितने हमने लिखे ना 2 से लेकर के 10 के आसपास, तो बहुत कम है। दिस इज अ वेरी लो स्केल ऑफ एनर्जी वैल्यू फॉर अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग। उसके लिए मान लो आपके पास 500 का नोट है और ये उसके लिए 1 रुपए का सिक्का है, दैट्स ऑल। तो दिस इज अ वेरी ओके सर। लो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन आपका उस मास को, जो आप कह रहे हैं ना कि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है तो उससे एनर्जी ज्यादा होगी, दैट इज देयर, बट वॉल्यूम टर्म बहुत बड़ा है, उसको एकोमोडेट कर लेगा। तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द एनर्जी मच। आपके न्यूक्लियस की एनर्जी का बहुत डिफरेंस नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, 500 में +1 और -1 करके देख रहे हैं, तो वो 1 का हमें फैक्टर बस चाहिए। 500 में वो न्यूट्रॉन मास ज्यादा है, वो बढ़ गया, वो आ गया, वो चला गया, उससे उस 500 में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो this is only concerned with the Coulomb repulsion of the nucleus, that's all, which is very low value as compared to the energy of the nucleus। अभी क्लियर हो जाएगा जब ये वाला टॉपिक हम खत्म करेंगे ना, तो वी विल गो टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस में आपको क्लियर होगा कि क्या एनर्जी स्केल है आपके इसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, एंड यू विल सी अमेजिंग थिंग्स। एक आधा पॉइंट हो सकता है आपने पहले पढ़ लिया हो तो मे बी, बट आई वुड से कि कुछ एक आधा चीज नई भी आपको पता चलेगी। हो सकता है सारी चीज पुरानी हो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट हो सकता है कुछ आपकी नई चीजें भी पता चले। तो लेट अस डिस्कस इन अ वेरी क्रूड वे। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तीनों एक्सपेरिमेंट है ना, उसे हमें डिटेल में डिस्कस नहीं करना, उसका कोई फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, तो वी विल नाउ डिस्कस द मैटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस। अभी तक हमने सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, अब हम मैटर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो मैटर डिस्ट्रीब्यूशन में आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करेंगे, तो पूरा फॉर्मूला उसका डिराइव करेंगे कि उसका जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है, यानी आप ये नंबर, इसका नाम जानते हो, इस जो मैंने लिखा है अभी, क्या लिखा है मैंने, डी सिग्मा बाय पता डी नहीं ओमेगा, सर। इसको कुछ कहते हैं। ये तो सुना ही नहीं, मॉडर्न फिजिक्स किया तो है तुम लोगों ने।
मॉडर्न फिजिक्स में नंबर ये आया नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सर ये ऐसे साइन तो पहली बार। अच्छा अच्छा, ये साइन देखा है सिग्मा, जिसका यूनिट ये होता है, आप कुछ याद आया? या माइनस में होता है क्रॉस सेक्शन, ये शायद माइनस में होता है, सेंटीमीटर इनवर्स -2 में होता है। दिस इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, दिस इज डिफरेंशियल, इसको मैं डालता हूँ यहाँ से, दिस इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी रिएक्शन। तो जब हम रिएक्शन कोई करते हैं ना, तो किसी एंगल पे कितने पार्टिकल मुझे मिलेंगे वो इक्वेशन ही बताता है। जब कोई भी स्कैटरिंग प्रोसेस आप करते हो, तो किसी एंगल पे हाउ मेनी पार्टिकल्स यू विल एबल टू फाइंड, ये एंगल आपका सॉलिड एंगल है, मतलब दिस इज नॉट ओनली प्लेनर, ये थीटा नहीं, थीटा और फाई दोनों मिलकर के है, तो यू विल मेक अ कोन। तो एक कोन में यानी एक पर्टिकुलर एरिया में आपको कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, दैट आइडिया यू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंक्शन। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन या रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। हम जनरल नेम इसका जो टोटल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। ओके, सो दिस, इसको हम डिटेल में डिराइव करेंगे फॉर रदरफोर्ड स्कैटरिंग, अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस में। बट ये फॉर्मूला रफली एक लिख देते हैं कि ये फॉर्मूला ये होता है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 1/16 is the factor, 1/T is the kinetic energy of incident particle on the target, and there is a angular factor, sorry, 1 by sine 4 theta by 2, sine 4 theta by 2. This is a scattering angle, theta is the scattering angle, तो theta by 2 का sine का 4 part और 1 by factor. So this is the equation, this we have to derive later, अभी नहीं कर रहे हम कुछ, इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट ये है कि सिग्मा अपॉन दिस क्रॉस सेक्शन is proportional to 1 by t if you fix the value of z and fix the value of theta। यानी आप एक एंगल पे आप बैठ गए हो, यानी आपने बीम पास किया, यानी गोल्ड फॉइल आपने लिया, गोल्ड फॉइल को आप अल्फा पार्टिकल से हिट कर रहे हो, और आप एक 60 डिग्री या 30 डिग्री या 40 डिग्री किसी एक एंगल पे आपने अपना डायरेक्टर फिक्स कर लिया, ठीक है। यानी इस पैरामीटर में बाकी चीजें फिक्स हो गई हैं, ऑल द पैरामीटर्स, ओनली यू कैन वेरी द टी, यानी आप टी ऑफ अल्फा वेरी कर रहे हो, और एट सर्टेन एंगल थीटा पे आप बैठे हो, और वहां पे आप ये क्वांटिटी फाइंड कर रहे हो, एंड हाउ इट इज वेरिंग विद द टी। ऑब्वियसली कैसा वेरी करेगा, 1/t का फंक्शन कैसे वेरी करता है, इट विल वेरी लाइक दिस, है ना, ये वेरिएशन आएगा, इनवर्स फंक्शन का वेरिएशन आ रहा है ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग का फॉर्मूला है। एंड वी हैव ऑलरेडी सेड कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग आपके कूलम्ब इंटरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है, कूलम्ब इंटरेक्शन पे, यानी चार्ज इंटरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर, इज इट क्लियर, is it clear or not? Yes, sir. So we are bombarding alpha particle, and I ask you one more thing, if you remember, मेरे ख्याल से ये भी फिर कहोगे कि नहीं पता है, distance of closest approach, know this ये तो line, पता है सर। distance, Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है, ये क्या होता है? सर अल्फा पार्टिकल वो 180 डिग्री पर वापस आएगा तो जिसकी वो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से, वही। That is closest means actually distance कोई fixed distance नहीं है, this distance depend upon the kinetic energy which you provide to the alpha particle, यानी alpha particle की kinetic energy जो भी होगी, that will decide how close you can go up to the nucleus, that is called distance of closest approach। यानी आपका क्या होता है, kinetic energy just convert into potential energy at a distance r from the nucleus center।
तो इस डिस्टेंस को आप डी कहते हो। इस आर को छोड़ देते हो क्योंकि बहुत बड़ा ही होता है डिस्टेंस, तो इसको आप डी कहते हो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नॉर्मली हम दोनों के यानी अल्फा पार्टिकल का अपना एक साइज होता है, तो दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम नॉर्मली कह देते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट 180 डिग्री पे वापस आने का क्या रीजन है कि वो इट गोज टू द क्लोज टू द न्यूक्लियस, इट स्टॉप मोमेंटरली, वो स्टॉप हुआ है और अपनी डायरेक्शन चेंज करके वापस आ रहा है बिकॉज रिपल्शन फोर्स। तो इट हैज स्टॉप्ड। स्टॉप मींस देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, देयर इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। सो यू कैन इक्वेट दीस टू इक्वेशन, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। नॉट गोइंग टू डिटेल, अगेन वी विल डू इन द व्हेन वी विल डू द रदरफोर्ड स्कैटरिंग, वहां पे हम करेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, इट मींस वी एटलीस्ट नो कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी कम है तो बहुत क्लोज नहीं जाएगा न्यूक्लियस के, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो इट विल गो क्लोज टू द न्यूक्लियस। इट मींस if I go on increasing the kinetic energy, what can happen? These two can come just at a touching like this one, surface दोनों का मिक्स अप हो गया, ओवरलैप हो गया। और जब ये सरफेस ओवरलैप हो जाएगा तो the protons and neutron within this, means proton and neutron within this and the proton and neutrons within this, they will start interacting because you need to go at least 1.5 Fermi close to each other, then only the interaction will be different. जब तक दूर में है चार्ज इज देयर, चार्ज का कूलम इंटरेक्शन होगा, लेकिन अगर एक पर बहुत ज्यादा क्लोज आ गए तो कूलम इंटरेक्शन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। And if that interaction starts, then this formula is not valid. Then different formula has to be devised. It means if I do the Rutherford scattering and I sit at certain angle and I go on increasing the energy of this one, it means at certain point of energy or certain value of energy, I will deviate from this scattering formula. Agree? I will deviate from this scattering formula. That means कुछ दूर तक तो मैं फॉलो करूंगा, उसके बाद मैं इसको फॉलो ना करके I will have different kind of d sigma by d omega. This deviation at certain energy, आप किसी t पे यानी किसी kinetic energy पे आपका deviation जहाँ start हुआ है, that will give you the idea of radius of the nucleus. Right? अगर न्यूक्लियस बड़ा है तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो सकता है पहले से ही आपका डिविएशन स्टार्ट हो जाए। रेडियस छोटा है टारगेट का तो यू हैव टू गो फर्दर क्लोज, इट कैन हैव मोर एनर्जी। सो देयर इज अ रिलेशन, यानी आप इस डिविएशन पॉइंट से आप रेडियस को प्रेडिक्ट कर सकते हो अपने रदरफोर्ड स्कैटरिंग से। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग सिर्फ इसलिए यूज हो रहा है कि वी नीड टू सी कि कहाँ पे हम डिविएट हो रहे हैं इस फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूला आपका कूलम एनर्जी पे बेस्ड है पूरा डेरिवेशन, उसमें कहीं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का रोल ही नहीं आता है, तो इट हैज टू डिविएट, यानी ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस पॉइंट को मैं नोट डाउन करना है, इस पॉइंट को नोट डाउन करने का जो वैल्यू आई है, यू कैन प्रेडिक्ट द रेडियस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। द आइडिया इज क्लियर? यस सर। यहाँ कहीं दिक्कत है? अगर नहीं है तो हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो यू कैन डू इन योर ट्यूटोरियल क्लास कि सर कितना डिस्टेंस होगा कि हम डिविएट कर जाएंगे। तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है और एटलीस्ट इट शुड बी अप अराउंड 1.5 फर्मी का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी दैट दिस डिस्टेंस, कि ये 1.5 फर्मी होना चाहिए, फिर इसका भी रेडियस है, इसका भी रेडियस है, दोनों का स्किन भी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? वो डिस्टेंस अगर आपका आ जाता है उस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी पे तो यू कैन से कि अब मेरा फॉर्मूला, मेरा जो स्कैटरिंग फॉर्मूला वो डिविएट कर जाएगा। ओके, द सेकंड द एक्सपेरिमेंट दैट इज अल्फा डीके। ये तो अब ये मत कहना कि आपने ये नहीं पढ़ा है मॉडर्न फिजिक्स में, ये तो पढ़ा है ना?
और जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो ग्राफ भी आपने देखा ही होगा। ये ग्राफ देखा है? अब ये मत बोलना कि नहीं देखा है, जल्दी बताओ। ऐसे वी अल्फा, ये ग्राफ भी नहीं देखा? हाँ या ना? कुछ नहीं बोल रहे तुम लोग अब। अरे बताओगे कुछ या नहीं? सर याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा बता दो। अल्फा डीके का ये ग्राफ है। दिस इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी of the nucleus for the alpha particle. This is radius of the nucleus, and this is your potential barrier which it has to cross to come out from the nucleus. This is potential barrier and this is radius. Nucleus का size ये है, लेकिन उसको इतना barrier cross करना होता है इस particular potential barrier को overcome करने के लिए, to come out. And this is the energy of the alpha particle, E alpha. And this T is tunneling probability, or you can say transmission coefficient, yani how much there is a chance to come out from the nucleus for alpha particle. That is something like e to the power of some number 2k distance. This distance is, let us say a, so this is a, और k की वैल्यू आपकी इस रेडियस पे डिपेंड करती है, यानी न्यूक्लियस के रेडियस पे, यानी न्यूक्लियस के एक्चुअली जब अल्फा पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस होता है तो that is like a helium particle which is helium atom, helium nuclei which is moving within the nucleus. तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आपस में क्लब कर जाते हैं and they form a strong smaller nuclei within the bigger nuclei and they become a single entity. और क्योंकि वो अंदर है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही है, तो they will interact through strong forces and they just bombard the boundary of the nucleus and they bombard the boundary several time टू कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। और कई बार न्यूक्लियस से बाहर आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, एंड देयर इज सम चांस दैट दे कैन कम आउट। दिस चांस इज डिसाइडेड बाय दिस नंबर एंड दिस के इज प्रोपगेशन वेक्टर काइंड ऑफ थिंग। तो वो डिपेंड करता है आपके रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस में। इट मींस अल्फा पार्टिकल जो बाहर आ रहा है उसके चांस क्या है, और वो चांस भी उसकी मतलब इसमें एनर्जी और वो दोनों मिले हुए हैं, एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी। इट मींस डिस्टेंस आर एंड ई अल्फा, यानी कितने एनर्जी का अल्फा पार्टिकल है उस एनर्जी से भी डिसाइड होता है कि वो बाहर आ पाएगा कि नहीं। ज्यादा एनर्जी है तो हो सकता ना आए बाहर, कम एनर्जी तो हो सकता है बाहर आ जाए। दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल जब अल्फा डीके करेंगे कि किस एनर्जी पे ज्यादा चांस होता है बाहर आने का। तो जो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी और उसकी जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। सो यू कैन प्रेडिक्ट द रेडियस। और यहाँ जो प्रेडिक्शन हो रहा है रेडियस का वो सब मैटर रेडियस हो रहा है। मैटर रेडियस मींस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द, बिकॉज जो इंट्रैक्शन प्ले कर रहा है रोल वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रोल प्ले कर रहा है। पिछले सारे केसेस में हमारे पास सारे इंट्रैक्शन क्या थे, चार्ज पे बेस्ड थे। अभी जो इंट्रैक्शन है वो मास पे बेस्ड है, प्रोटॉन पे भी बेस्ड है, न्यूट्रॉन पे भी बेस्ड है। तो इफेक्ट भी हमारा टोटल रेडियस का यानी न्यूक्लियस का मैटर रेडियस का वैल्यू आएगा। कैलकुलेशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन हमें डिटेल में आगे के यूनिट्स डिस्कस करना है। अब याद आया ये कौन सा ग्राफ है, या अभी भी नहीं याद है? रिस्पॉन्स बहुत स्लो देते हो, जल्दी नहीं देते हो। ये वाला ग्राफ किया ही नहीं था क्या कभी, देखा नहीं था? यस और नो? नो सर। ये ग्राफ कभी नहीं देखा, कैसे नहीं देखा? याद था, याद नहीं है। लिख के किया था।
ये ग्राफ एक वन ऑफ द बेसिक ग्राफ है। जब अल्फा डी के पढ़ते हैं ना, तो अल्फा डी के चाहे आप डिटेल में पढ़ो चाहे डिटेल में ना पढ़ो, ये ग्राफ तो बनाता ही है, टीचर बनाएगा पक्का, ये ग्राफ बनाएगा एंड ही विल एक्सप्लेन कि क्या क्या टर्म्स है, ई कहाँ पे है, बैरियर कहाँ पे है, रेडियस कहाँ पे है, और कितना रेडियस और डिस्टेंस कितना है। ग्राफ में तो आपको दिखने में लग रहा है कि ये दोनों सेम डिस्टेंस है, आर और ई कंपेरेबल है, बट नॉर्मली दे आर नॉट कंपेरेबल। आर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7 फर्मी एंड ए इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 27 फर्मी, तो बहुत फर्क होता है। यानी 20 फर्मी आगे जाके भी वापस आना पड़ता है अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के अंदर, यानी एटम से घूम करके वापस आ जाता है। तो वॉट एवर दीज डिटेल वी विल डिस्कस इन, बट आई होप कि ये पढ़ा होगा। कोई नहीं, अब आ जाते हैं थर्ड। इसी में मैं थर्ड वाला पार्ट खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ वो डिस्क्रिप्टिव दूंगा, दैट आई विल नॉट डिस्कस इन डिटेल। पायोनिक एक्सरे, इट इज सिमिलर टू योर मियोनिक एक्सरे, जैसे मियोनिक था वैसे ही पायोनिक है। बट फर्क क्या है कि पाई पार्टिकल जो होते हैं, पाई प्लस के भी आते हैं, माइनस के भी आते हैं और जीरो चार्ज के भी आते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करना है, यानी हमारे पास न्यूक्लियस है, वी हैव electrons, we need to replace these electrons. तो I will replace these electron by pions. तो जैसा हमने पाई म्यून्स में डिस्कस किया था ना, सेम सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट वन चेंज। जो म्यून्स थे दे आर एलिमेंट्री पार्टिकल, दे आर नॉट कंपोजिट पार्टिकल। जो पाई हैं, जो पाई पार्टिकल हैं, दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। यू कैन पुट अ बार हियर. So they are composite particle and they are made up of quark. They are not made up of leptons. Means they are not made up of electron-like thing. Yet something like that. It means जो pi particles हैं, इनका इंटरेक्शन न्यूक्लियस के साथ कूलम का भी है और साथ में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी है। दोनों इंटरेक्शन का ही रोल इसमें होगा जब ये इंटरेक्ट करेगा न्यूक्लियस से। It means it will not only interact with the protons, but it will interact with the neutron also, because it is a composite particle. It is made up of quark, and within the nucleus also we have quarks. So now they are doing the interaction. It means the diameter or the radius of this orbit will be decided by these two factors, not by the Coulomb's factor, which was in the previous case. That was Meonic case. तो वहां पे एक्सरे की एनर्जी डिफरेंट आएगी। अगर आपने पायोनिक एटम बना लिया या पाई में जोन आपने डाल दिया है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जगह पे, तो ऑर्बिट विल चेंज, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर विल चेंज एंड the X-ray which is coming out, that will also, its value is going to change. But that X-ray value has a contribution from both the interaction, that is Coulomb plus strong, because pions are not elementary particle, they are composite particle made up of quark. क्लियर? जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ये है, बाकी प्रोसेस वही है। हमें डेल्टा ई निकालना है, एनर्जी डिफरेंस निकालना है कि ये जो एक्सरे एमिट हो रहा है, अगर नॉर्मल एटम होता तो कितना होता, जब पाई हमने डाल दिया तो कितना हुआ। इन दोनों में डिफरेंस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर मैटर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? प्रोसेस इज नॉट डिफरेंट, प्रोसेस इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। क्लियर? ओके, अब क्लियर बोलो हाँ या ना। आप लोग बोलोगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो आई वुड assume कि it is clear. कर लूं assume? Yes, sir. assume करते रहो, पढ़ाते रहो, खत्म करते रहो सिलेबस। No question, no doubt. Okay. Let us write the last thing after doing all this experiment. चार हमने चार्ज के एक्सपेरिमेंट किए डिस्कस, 3 हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए आपके मैटर रेडियस के लिए, जो भी आपका इंटरेक्शन था वो। सो नाउ वी विल डिस्कस फाइनली कि इसका आउटकम क्या है। आपने एक्सपेरिमेंट तो डिस्कस कर लिया, अब हम फॉर्मूला क्या यूज करें। सर इतने सारे एक्सपेरिमेंट आपने बता दिए, मुझे पता ही नहीं चल रहा फॉर्मूला क्या मैं यूज करूं। किसी में 1.2 आ रहा है, किसी में 1.5 आ रहा है, किसी में 1.23 आ रहा है, किसी में 1.25 आ रहा है, क्या फॉर्मूला यूज करूं। तो सबसे पहले तो ये कि व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला। एनीवन नो ये फॉर्मूला क्यों हम यूज करते हैं? ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है या किसी अजम्पशंस के साथ स्टार्ट हुआ है?
ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये फॉर्मूला ऐसा कुछ वैलिड हो रहा है, तो हम लिख देते हैं इसे, या ये फॉर्मूला कहीं से डिराइव हुआ है। सर अजम्पशन के साथ होगा शायद। शायद, ओके, assumption के साथ होगा, ठीक है। जैसे हम ए हाँ, की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। और तो हमने z क्यों नहीं रखा? z से भी तो बन सकता था, n से बन सकता था। द आइडिया वाज वेरी सिंपल, कोई बड़ा आइडिया नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि खतरनाक आइडिया, वेरी सिंपल, दिस इज न्यूक्लियस एंड व्हाट वी हैव थॉट कि आपका जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, एंड देयर इज अ सैचुरेशन इफेक्ट। अब ये जो सैचुरेशन इफेक्ट है ना, ये भी हम मॉडल जब पढ़ेंगे ना तो उसमें डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी है, उस एक्सपेरिमेंट से हम डिड्यूस करते हैं कि व्हाई वी हैव अ saturation. Saturation is something like means there are two parameters, एक को आप इंक्रीज करते हो, दूसरा इंक्रीज होता है, लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट सैचुरेट, दिस इज अ सैचुरेशन। सैचुरेशन का मीनिंग और कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे भी वही है कि आपने एक पैरामीटर, जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर ए की वैल्यू 100 है जो उसका रेडियस होगा, और ए की वैल्यू 250 है उसका रेडियस होगा, दोनों का रेडियस सेम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक या दो फॉर्म में का ही है। यानी जब मैं ए को इंक्रीज कर रहा हूँ तो रेडियस तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम इट बिकम कांस्टेंट, रफली कांस्टेंट, दैट डजंट इंक्रीज मच, सो देयर इज अ सैचुरेशन। इवन इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी आल्सो वी गेट अ सैचुरेशन। जब हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखते हो ना तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि एनर्जी तो पहले तो इंक्रीज होती है, फिर वो मोर लेस फिक्स हो जाती है, दैट इज सैचुरेटेड, नाउ यू डोंट हैव फर्दर चांस टू इंक्रीज द एनर्जी, सो देयर इज अ सैचुरेशन इफेक्ट। तो सैचुरेशन इफेक्ट है और चार्ज इंडिपेंडेंस है, इट मींस z और n में कोई डिफरेंस नहीं है न्यूक्लियस के अंदर। इट मींस व्हाट विल हैपन when they are placed in the nucleus, they are placed tightly and they are packed in the nucleus, कोई गैप नहीं छोड़ते खाली, and all are occupying a certain radius which is r naught। क्या हम एज्यूम करेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम साइज के हैं, दोनों का साइज जो रेडियस है वो आर नॉट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इट मींस जो टोटल वॉल्यूम बनेगा एक स्फीयर का, जिसमें आप टाइटली पैक करोगे छोटे छोटे बॉल्स जिनका रेडियस खुद क्या है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, और इन कितने बॉल्स आपने डाले, ए बॉल्स डाले, ना तो z ना तो n, बिकॉज दे बोथ आर सेम फॉर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, तो आपने ए बॉल्स डाले। This volume is nothing but the big sphere which is formed, which is again 4/3 pi capital R cube. So we can write this formula. अगर हम Z लिखते हैं तो हमें चार्ज डिपेंडेंट फोर्स का भी यहाँ पे रोल होना चाहिए था, अगर N लिखते तो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स का होता, लेकिन हमारे पास दोनों एंटिटी है, तो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग A। व्हाई वी डोंट टेक Z? Z लेते तो हमें कुछ और डिफरेंट चीजें लिखनी पड़ती, चार्ज कंपोनेंट लिखना पड़ता, और जब Z नहीं ले रहे हैं, अगर सिर्फ N लिख रहे हो तो जब चार्ज नहीं है उसके अंदर फिर भी आप उसे नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो यानी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस Z और N को डिफर नहीं करते हैं, वो दोनों को सेम मानते हैं। तो यू गेट दिस फॉर्मूला, एक ही लाइन में आ गया आंसर। यस सर। ठीक है, तो कल को कोई पूछता है फॉर्मूला ऐसे ही लिख दिया था किसी ने, नहीं, इस रीजन से लिखा था क्योंकि यहाँ पे A इज इम्पोर्टेंट नॉट Z। Z लिखोगे तो फिर आपको कूलम एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा, और कूलम एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत कम है, उसका कोई बहुत ज्यादा है इफेक्ट, बट बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, एंड देन वी हैव सेड कि सर आपने दो एक्सपेरिमेंट डिफरेंट करवाए जिसमें आपने चार्ज रेडियस निकाला, मैटर रेडियस निकाला, तो मैं क्या यूज करूं फॉर्मूला? यस, दैट इज आल्सो आंसर्ड। आर नॉट ए 1/3 फॉर्मूला तो आप दोनों के लिए यूज करोगे, बट आर नॉट की वैल्यू होगी 1.2 फॉर मी, बहुत सारा डिफरेंस नहीं है। क्रेन में देखोगे तो इट इज रिटन कि दोनों सेम है,
बट दूसरी बुक में देखोगे तो देयर इज अ डिफरेंस. इवन इफ यू सर्च द रेडियस, आप टाइप करो गूगल पे तो आपको स्टैंडर्ड जो आंसर होते हैं ना कि विकिपीडिया या किसी पर्टिकुलर उससे मिला होगा, तो आप ढूंढो कि आर नॉट ऑफ यूरेनियम ढूंढो, गोल्ड, कॉपर, किसी की भी वैल्यू ढूंढो, it will not match with this formula if you take this value 1.2 Fermi. But if you search for charge radius, then you will get the same value. यानी दोनों वैल्यू आपकी डिफर करती है थोड़ी सी. इसका वैल्यू होता है 1.4 Fermi. This is for charge, this is for matter. यानी दोनों रेडियस में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत ज्यादा तो नहीं है. फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई, जो लाइटर न्यूक्लिया है उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. हैवी न्यूक्लियाई में थोड़े से डिफरेंस आ जाते हैं. And there is one more thing that you can use, that normally जो R की वैल्यू यूज होती है वो 1.2 से 1.5 तक यूज होती है. 1.4 भी नहीं, उससे ज्यादा है. Because we have only discussed the interaction which is nuclear interaction strong and Coulomb interaction. इन दोनों से के अलावा भी और चीजें हैं न्यूक्लियस में which actually deform the nucleus and may change the size of the nucleus. बट वो उतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होते डे टू डे लाइफ में. तो डे टू डे लाइफ में इट इज वी कैन डील विद दिस फॉर्मूला और वी कैन टेक द एवरेज 1.3. यू कैन टेक दिस विच इज गुड इनफ. अगर आपको कोई न्यूक्लियस के लिए निकालने के लिए कहता है, तो अगर आप क्लास में जब ये सॉरी आंसर शीट में आप लिख देते हो कि 1.2 फॉर चार्ज रेडियस एंड 1.4 फॉर मैटर रेडियस एंड आई विल यूज 1.3 एज अ मीन वैल्यू, सो दैट इज ऑल्सो ओके. यू विल गेट टोटल मीन्स यू विल गेट फुल मार्क्स. और अगर आप सिर्फ 1.2 लिखते हो तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई काटेगा नहीं उसके लिए. बट 1.3 जब लिखोगे और ये दोनों लाइन भी लिख दोगे कि 1.2 इसके लिए 1.4 इसके लिए और आई विल यूज 1.3, तो टीचर भी सोचेगा कि बच्चे ने पढ़ा है कुछ. ठीक है. हाँ, 1.5 मत यूज करना, क्योंकि ये यूज करने के लिए आपको और भी चीजें समझनी पड़ेगी क्यों हम ये 1.5 तक भी जा सकते हैं. किसी किसी का रेडियस इतना ज्यादा होता है. फॉर्मूला यही है, फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला इज सेम बट व्हाट वैल्यू ऑफ आर नॉट यू हैव टू यूज. तो जितने भी चार्ज वाले फॉर्मूले, चार्ज एक्सपेरिमेंट पे हम चार्ज पे बेचते हैं वो 1.2 देते हैं हमें, और जितने हमारे मैटर पे बेस्ड हैं वो 1.4 के आसपास देते हैं. तो नॉर्मली हम 1.3 एक आइडिया लेकर के कि मीन वैल्यू एक रेडियस ये है. ठीक है. सो हियर आई फिनिश ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि पहली प्रॉपर्टी हमने अभी फिनिश की है. नाउ वी कम टू द मास, कि मास हम कैसे फाइंड करते हैं न्यूक्लियस का. मास कैसे निकालेंगे, उसे वे बैलेंस पे रख सकते हैं हम. कोई ऐसा बैलेंस है हमारे पास जिसपे हम रख दें न्यूक्लियस को उठा करके. नहीं सर कार्बन के एक एटम का 12 यूनिट सपोज करते हैं. हाँ, लेकिन एटम का, न्यूक्लियस का, मुझे न्यूक्लियस का मास चाहिए. एटम का मास और न्यूक्लियस के मास में फर्क होता है कुछ, जो सेम होता है. बहुत फर्क होता है. अप्रोक्सीमेटली सेम होता है. इलेक्ट्रॉन का मास तो काफी कम है. इनका मास बहुत कम है तो फर्क नहीं होना चाहिए. ओके, गुड आंसर. एक ही बच्चे ने बहुत भी बोला कि बहुत फर्क होता है, बट वो फर्क कितना होता है उसने बताया नहीं, बस बोला बहुत फर्क होता है. ऑब्वियस है. देखो, आपके पास नेसेंट या आइसोलेटेड न्यूक्लियस यू कैन नेवर फाइंड इन द नेचर. आप सिर्फ एक ही फाइंड कर सकते हो, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो दैट इज योर आयनाइज्ड हाइड्रोजन. तो एक वही नेचर में न्यूक्लियस है जो कंप्लीट न्यूक्लियस है भी नहीं, उसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है, उसमें आपका न्यूट्रॉन ही नहीं है, तो दैट इज नॉट अ कंप्लीट. तो उसको हम पिक्चर से बाहर कर देते हैं. अब मैं किसी और न्यूक्लियस को अगर लूं, ड्यूटेरियम को ले लो या किसी और हैवी न्यूक्लियर को ले लो, if you try to remove all the electrons, that is not possible. You require huge amount of energy, so that is not possible. It means what we can do, we will measure the mass of atom only and we will try to predict the nuclear mass. क्योंकि नेचर में
एटम एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्री फ्री एग्जिस्ट का मीनिंग ये नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता है बट नॉट फ्री, कि कहीं न्यूक्लियस घूम रहा हो भी ना। ऑक्सीजन मुझे देखा, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस घूम रहा है, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो व्हाट वी हैव, एटम्स है हमारे पास, और एटम से हम न्यूक्लियर का मास प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें एटम का मास भी पता होना चाहिए ढंग से। अगर एटम का ही मास नहीं पता तो न्यूक्लियर का मास हम क्या निकालेंगे? तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, दैट इंस्ट्रूमेंट शुड एबल टू प्रेडिक्ट द मास एक्यूरेटली। एंड एटम का मास बहुत क्लोज है आपस में, तो प्रिसिजन भी बहुत ज्यादा चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर देखोगे, आइसोटोप्स ही देख लो, सबका एटॉमिक मास नंबर सेम है। 4 आइसोटोप है तो चारों का सेम है। मास में हार्डली उसके 10⁻⁻⁴, -5 या -6 में जाके कहीं डिफरेंस है। अगर सिंगल एटम की मैं बात कर रहा हूँ, यू कैन टेक मोल्स ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम आपका हैवी ग्राम्स में आ जाएगा, ग्राम्स में इजीली हो जाता है कैलकुलेशन। बट अगर सिंगल एटम की बात करूं तो द मास डिफरेंस बिटवीन वेरी क्लोज एटम्स आर hardly of a very means fraction 1 in the part of 10⁻⁶ वैल्यू, यानी 10⁻⁶ में से एक पार्ट का डिफरेंस होता है बस। It means we need a precise instrument. That instrument is called mass spectroscopy. That instrument is called mass spectroscopy. तो we have a beam of ions. एक बार जरा एक्सपेरिमेंट, बस ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस थोड़ा सा है, which you already know. There is another chamber. ये ओपन है, ये तो मैंने गैप बना दिया है, दिस इज ओपन, दिस इज where beam can pass, and there is another opening where you have a this one. So this is exactly circular बन गया, but this is something like this one. So beam can pass throughout the space. इस पे ये पूरा खुला हुआ है, बीच बीच में हमारे चैम्बर कनेक्टेड है। फर्स्ट चैम्बर वेयर यू हैव प्रोडक्शन ऑफ आयंस, तो आपने यहाँ पे आयंस को जनरेट करते हो, यानी आप इसको चैम्बर को हीट करते हो और आप इसमें वेपर डालते हो, वेपर से फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं आयंस में। तो आपके पास चार्ज्ड एटम्स आ जाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, दैट बिकम आयन। तो आप उसको इजिली, उसका जो मोशन है यू कैन कंट्रोल बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग देम आयंस। आयंस बनाने का और कोई रोल नहीं है, ये बनाने का सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि हम उसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से उसका मोशन कंट्रोल कर सके। वेलोसिटी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक्ट कर सकता है, और वेलोसिटी और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्ट कर ही सकता है उस पर। तो व्हाट वी विल डू, we will have, in this case we are just producing ions and the ions are moving in this particular chamber और slowly इसमें diffuse करके यहाँ पे आ गए। In this case what I will do, I will apply the electric and magnetic field both, यानी यहाँ पे मेरे पास E and B दोनों यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस में हो रहे हैं ऑब्वियसली। तो मेरे पास क्या होगा, क्रॉस या जैसे भी आप करो, आपको ये करना है कि इस पे जो लॉरेंस फोर्स यानी इलेक्ट्रिकल लॉरेंस फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स दोनों, यानी क्या होगा, ई लिखा मैंने नोट्स में, क्यू लिखा है तो चलो ई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ई वी बी, ये दोनों फोर्स हो गए। तो व्हाट आई विल ट्राई टू मेंटेन कि ये फोर्स जब इक्वेट हो जाए, अगर मान लेते हैं ये फोर्स मेरा अपवर्ड एक्ट कर रहा है, ये फोर्स मेरा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इस चैम्बर में। फॉर एग्जांपल मैंने अरेंजमेंट अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी रखी है कि वन फोर्स इज ट्राइंग टू make these ions move upward and one of the force is trying to make the ions move downward. Clear? यहाँ तक clear है? Is it clear? Yes, sir. And we are trying to make E and B in such a way that they are making a same force. So what will happen? What will happen, मैंने एक और फॉर्मूला लिख दिया है। What will happen?
does the ions will move to this chamber or they all will go somewhere here and here? मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये आयंस पॉजिटिव चार्ज के ही हैं सारे, तो दे विल गो इन दिस वे। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो दे विल ऑल द पॉजिटिव आयंस विल ट्राई टू गो इन दिस डायरेक्शन। इज इट क्लियर? And I put a magnetic field in such a way that its resultant force यानी जो वैल्यू E V क्रॉस B यानी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सारे आयंस इधर मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, आपने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, आई विल अज्यूम कि वो सारे के सारे फोर्स उस पर जो एक्ट कर रहा है वो उनको इधर लेके आ रहा है और दोनों इक्वल है, तो व्हाट विल हैपन? क्या ये आयंस नेक्स्ट चैम्बर में जाएंगे या दे विल डिपॉजिट इन दिस चैम्बर ओनली एट द बाउंड्रीज? और जाएंगे तो क्यों जाएंगे? चलो समझ गया कि जाना आप लोग ने चाहिए। बता दी। अच्छा जाना चाहिए तो कैसे जाएंगे या कौन से जाएंगे? सर काइनेटिक एनर्जी तो होगी उनके पास। अरे तो काइनेटिक एनर्जी है बट फोर्स तो जो लग रहा है फोर्स तो उसे बेंड कर रहा है ना, फोर्स तो बेंड कर देगा उसे, जब बेंड कर देगा तो आगे के होल के पास वो जाएगा नहीं, इस ट्रेजेक्टरी में जाएगा ही नहीं, इसमें इधर जाने के लिए सर कुछ चाहिए मैग्नेटिक उसे। फील्ड भी तो है, तो वो हेलिकल पाथ में से घूमता रहेगा ना, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन की तरह। नहीं है उतना, मैंने बड़ा नहीं रखा है, डीज मेरे बहुत बड़े नहीं है कि वो हेलिकल में जाए, अच्छा। इट वाज जस्ट डिपॉजिट एट बाउंड्री। देखो अब इमेजिन करो सभी के पास सेम वैल्यू ऑफ मीन सभी का पॉजिटिव चार्ज एक ही मान लेते हैं कि सारे आयंस आयंस का सेम चार्ज है, एग्री, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे सेम लग रहा है, एग्रीड? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें हम कहीं कोई डाउट नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब पे सेम है क्योंकि सबका चार्ज सेम है। अब जो दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, इफ द अब आयंस की वेलोसिटी सेम नहीं है, ये ध्यान रखना, जब आयन चैम्बर क्रॉस कर रहे थे तो वेलोसिटी में वेरिएशन है, यानी देयर इज अ वेरिएशन रेंज ऑफ वेलोसिटीज। तो if the velocity which is not equal to this v which is e by b, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने निकाला ये वेलोसिटी, अगर e यानी आयंस की वेलोसिटी पहले से ही डिजाइन असाइंड है, उसको पहले से ही है, पिछले चैम्बर से जब आया तो उसके पास एक वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी अगर e by b के इक्वल नहीं है, इट मींस आइदर इलेक्ट्रिक फोर्स इज मोर और मैग्नेटिक फोर्स इज मोर, एग्रीड? भाई अगर यस सर। वेलोसिटी इस वैल्यू के इक्वल नहीं है तो या तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है या तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, ज्यादा है तो उधर चला जाएगा, यानी जब इलेक्ट्रिक ज्यादा होगा तो इट विल डिपॉजिट इन दिस वे, अगर इधर जा रहा है इट मींस मैग्नेटिक फोर्स उस पर ज्यादा एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इधर चला जाएगा, एग्रीड? बट इफ the velocity is precisely for those ions which is equal to E by B, then it will move in a straight line and it will cross this chamber, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, यानी उस पर नेट फोर्स जीरो है, तो वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करके रखेगा और उसी डायरेक्शन में रखेगा, इट विल गो टू द थर्ड चैम्बर, क्लियर? यस सर। यस। दिस चैम्बर इज नॉर्मली कॉल्ड एज वेलोसिटी सेलेक्टर। ये वेलोसिटी का सिलेक्शन करता है कि किस वेलोसिटी को मुझे आगे थर्ड चैम्बर में अलाउ करना है, यानी आप ई और बी को चेंज करके उस वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर, यानी किस वेलोसिटी के आयंस को मुझे थर्ड चैम्बर तक लेके जाना है, दैट यू कैन डिजाइन बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ई एंड बी, ओके? नाउ द थर्ड चैम्बर इट ओनली हैव द मैग्नेटिक फील्ड, इस चैम्बर में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको पता ही है
अगर किसी चार्ज का वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट एंड इट विल मूव दैट पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ। तो जितने भी आयंस यहाँ पहुंचे हैं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेंगे। एंड व्हाट आई एम डन कि मैंने यहाँ पे कट कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक प्लेट लगा दिया, फोटोग्राफिक प्लेट। बहुत बड़े नहीं है ये, हार्डली 10 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के साइज का होगा, उससे ज्यादा नहीं, हार्डली 1 सेंटीमीटर भी मान के चलो। दैट इज वेरी स्मॉल प्लेट। अब उस पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा, यानी जो आयंस इसको क्रॉस कर गए थे, यानी थर्ड चैम्बर तक जो आयंस आ चुके हैं, they will start depositing on these particular this plate which you have connected here. And why they will at a different point, अगर सबका मास सेम है तो सब एक ही पॉइंट पे डिपॉजिट होंगे, लेकिन अगर मास में माइन्यूट डिफरेंस है तो they will deposit at different point. Why? Because in this case, what is the formula? mv square must be equal to qvb। अगर मैंने b सेम रखा है तो इमेजिन करते हैं कि जो मैंने b यहाँ पे रखा था वही b मैंने यहाँ पे भी रखा है, तो qvb यही फॉर्मूला फॉलो होगा। सॉरी mv स्क्वायर अपॉन r होगा, सॉरी mv स्क्वायर लिखते हैं, mv स्क्वायर अपॉन r, ये रेडियस जो रेडियस फॉलो कर रहा है, कर्वेचर रेडियस, mv स्क्वायर अपॉन r, एंड दैट शुड बी द मैग्नेटिक फोर्स। यानी किस रेडियस यानी किस पॉइंट पे डिपॉजिट होगा, आई कैन इजीली कैलकुलेट, एंड दैट विल बी इक्वल टू qvb डिवाइडेड बाय, सॉरी r को हम इधर ले आते हैं, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन qvb, so that is equal to mv upon qb, and if magnetic field is same, so I can replace from here also. E की वैल्यू को आप यहाँ से B की वैल्यू को VB से रिप्लेस करके E को भी ला सकते हो, बट हम ये भी यहीं छोड़ देते हैं, या फिर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं, बट लेट अस चेंज दिस वन, V इज इक्वल टू E बाई B, तो हम इसको चेंज करते हैं, ME डिवाइडेड बाई QB स्क्वायर। इट मींस रेडियस यानी डिपोजिशन कहाँ पे होगा, वो मास पे डिपेंड कर रहा है, अगर आपने E, B और Q कांस्टेंट रखा है तो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. And the radius precision has to be of the order of 1 in part of 10 to the power of 6, क्योंकि मासेस का जो डिफरेंस है वो भी करीब करीब 1 10 to the power 6 मींस 10 to the power minus 6 के ऑर्डर में इस प्रिसिजन में। तो दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड, यानी प्रिसिजन इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप मास को, आप जो डिपोजिशन है ना उस डिपोजिशन को आप जज कर पाओगे, अदरवाइज यू विल लुक कि सब कुछ एक ही जगह पे डिपोजिट हो रहा है। सो दैट शुड बी वेरी प्रिसाइज, यानी E और B की वैल्यू भी बहुत प्रिसाइज हो। एक सेकेंड होल्ड करना। तो इट मींस E और B की भी वैल्यू बहुत प्रिसाइज हमें रखनी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे आपने स्पेक्ट्रोमीटर देखा है ना, तो उसी टाइप का ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मास के डिफरेंस को जज करता है। ओके, यहाँ तक तो हम आ गए जिसमें हमें प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब हम आ जाते हैं मास की कैलकुलेशन में। तो मास की कैलकुलेशन वैसे बहुत इजी नहीं है। हमें क्या करना होता है कि पहले हम क्या कर सकते हैं, आइसोटोप के मासेस चेक कर सकते हैं, बिकॉज आइसोटोप के मासेस बहुत क्लोज होते हैं बट उनका मास नंबर सेम होता है। और वी कैन हैव अ कंपाउंड सिस्टम, मींस समथिंग लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिस्टम, जिनमें मास नंबर सेम हो बट माइन्यूट डिफरेंस होना चाहिए मास का। तो एक बच्चे ने बीच में पॉइंट बोला था कि हम सारे मासेस, जितने भी एटम के मास हैं, एक मास के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और वो है कार्बन 12, जिसका मास हमने अज्यूम कर लिया है इतना एटॉमिक मास यूनिट फिक्स्ड है। कार्बन 12 का मास को हमने एज अ रेफरेंस मान लिया, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम बाकी सारे मासेस को निकालते हैं। यानी अगर मुझे हाइड्रोजन का मास पता करना है तो मुझे उसे कार्बन से कंपेयर करना पड़ेगा, मुझे नाइट्रोजन का मास अगर पता करना है तो मुझे कार्बन से कंपेयर करना पड़ेगा। यानी इस इंस्ट्रूमेंट में मुझे
कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, इस तरीके के कंपाउंड उसमें मुझे डालने पड़ेंगे। कार्बन जहां डिपॉजिट हो उसके रिस्पेक्ट में मैंने बाकी के मासेस निकाले। क्लियर? हमने इसको फिक्स कर लिया है। दिस इज व्हाट वी हैव मेड द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. ओके, तो इफ आई वांट टू मेजर द मास ऑफ हाइड्रोजन, देन व्हाट आई हैव टू डू? मैं एक ही चैम्बर में कार्बन और अगर हाइड्रोजन में डाल देता हूँ तो दोनों का इंडिविजुअल मास तो बहुत ज्यादा डिफर करता है, लेकिन मेरा जो सिस्टम है, जो मास वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बहुत क्लोज मासेस को ही मेजर कर पाता है। तो आई कैन नॉट पुट हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड लुक एट द डिपोजिशन। कार्बन तो डिपॉजिट हो जाएगा, हाइड्रोजन पता नहीं कहाँ उड़ के चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है उसका रेडियस इतना छोटा या इतना बड़ा, ऑब्वियसली मास पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज सो स्मॉल कि वो डिपॉजिट ही नहीं होगा मेरे फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो आई विल मिस द हाइड्रोजन। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मास डबलेट। उसको कहते हैं मास डबलेट। यानी आई विल यूज अ कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ आर देयर। ऐसा कंपाउंड मैं चूज करूंगा, ऐसे दो कंपाउंड में चूज करूंगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही हो, और मैं कंपाउंड का डिपोजिशन चेक करूंगा। I will not check the deposition of atoms or elemental form, but I will check the deposition of compounded form. यानी वो किसी का, for example, let us first calculate the hydrogen. नाइट्रोजन आप बाद में होमवर्क में करना, बट हाइड्रोजन के लिए हम करते हैं कि हाइड्रोजन, अगर मुझे हाइड्रोजन का मास निकालना है, उसका कंपेरेबल मुझे कार्बन के साथ लेना है, और दोनों को मैं एक टाइम पे अपने इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं डाल सकता, बिकॉज इट इज अ वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुझे बहुत ज्यादा चेंज करनी पड़ेगी if I shift from carbon to hydrogen. So I will use a compound in which both are there. Carbon, hydrogen, दोनों ही है. So we will put the compound, two compound which are called mass doublet, and we will use C10 and H8. दोनों का मास नंबर चेक करो। मास नंबर क्या आएगा कंपाउंड का? इसका मास नंबर क्या आएगा? 128। इसका मास नंबर क्या आएगा? 128. यानी मास नंबर, यानी ए वैल्यू मेरा सेम है। अगर ए सेम है तो यानी इनके आपस में जो मास का डिफरेंस है ना, वो 10⁻⁻⁶, -5 या -4 के आसपास की वैल्यू का है। यानी दोनों कंपाउंड बहुत ही मास नंबर में सेम है, दे आर कंपेरेबल। दोनों का ए सेम है तो दे आर वेरी मच कंपेरेबल। सो व्हेन आई पुट देम इनटू द चैम्बर, दे विल डिपॉजिट एट डिफरेंट पॉइंट। क्योंकि मास में डिफरेंस है, मास नंबर तो सेम है, लेकिन मास में माइन्यूट डिफरेंस है, तो दे विल डिपॉजिट एट डिफरेंट पॉइंट। आई कैन चेक दोस डिपॉजिट पॉइंट के कहाँ पे डिपॉजिट हुए, और मैं दोनों का एक मास डिफरेंस यानी डेल्टा एम निकाल सकता हूँ कि दोनों कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है। डेल्टा एम की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये रही, तो यहाँ लिखा था ना हमने, दिस वन। रेडियस इज दिस वन, इट मींस मास इज r q b square upon e. It means delta m will be q b square upon e, कॉमन हो गया r1 minus r2। क्लियर? यानी जहां डिपॉजिट हुए उसके रेडियस के अकॉर्डिंग मेरा डेल्टा एम क्लियर हो गया कि दोनों का मास का डिफरेंस ये है। तो दिस आई विल गेट फ्रॉम द mass spectroscopy. So for these two compound, roughly the delta m is 0.09 390032 plus minus 0.000, 3 more zeros and 1 2 atomic mass unit, that is U. तो डेल्टा एम मेरा कैलकुलेट होकर के इतना आ गया, जिसमें एरर पॉइंट यानी प्लस माइनस इतना एरर है। एरर भी देखो कहाँ है? -6 के पावर में, यानी 6 नहीं -7 में। -6 तो यहीं पे हो गया, -7 में। यानी अगर एरर में इंक्लूड भी करता हूँ या उसको एक्सक्लूड भी करता हूँ, एटलीस्ट आई एम प्रिसाइज अप टू 10⁻⁶। अगर एरर को साइड में भी रख देता हूँ तो, अगर मैं इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, तो ये पार्ट मेरा डेल्टा एम आया।
अब इससे हम हाइड्रोजन का कैसे मास निकालेंगे? वेरी सिंपल, दिस डेल्टा m is nothing but it is equal to mass of C9H10 minus mass of C10H8. It means this is 9 mass of carbon plus 10 mass of hydrogen minus 10 mass of carbon minus 8 mass of hydrogen. ठीक है? So this will give me this is minus 1 and these two will be how much? 10 minus 2, that is 2. Sorry, this is 20 mass. अच्छा 20, sorry, this is 20. Okay, sorry, this is 20. ये कैलकुलेशन किसी ने की थी ना? 12 into 9 कितना होता है? 12 9 से 108. 108, and if I get 128, this must be 20. So 128, and this is 12 into 10, 120 plus 8, 120. Yes, this is 20. So this has to be 20. So this is 20. This one is 20. So 20 minus 8 is 12 mass of hydrogen minus 1 mass of carbon. 1 लिख रहा हूँ, सिर्फ mass of carbon. So that must be equal to delta M. It means mass of hydrogen is delta M plus mass of carbon divided by 12. It means यहाँ पे आपने 12 ऐड करना है, यानी ये वैल्यू हो गया 12.09390032 प्लस माइनस 0.12345612 divided by 12. So this will be 1.0. अब आप बताओ कितना होगा? 9 तो 12 से छोटा है तो एक 0 आएगा ही. वैल्यू आएगी 782503. This could be, if you write as this is you have done plus, so this is plus minus. किसी केस में अगर माइनस होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, बट एरर फैक्टर है, सो दैट इज देयर. तो 0.000000 एंड 1 में यानी 7 zeros के बाद एक 1 आएगा. यानी see the precision of this hydrogen mass, it is quite close to this one. यही हम यूज करते हैं. ये हम वैल्यू कितना यूज करते हैं? इतना यूज करते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन में. And this is the error part you are getting. Now you can calibrate your instrument for some other mass number, but you have to compare with carbon. आपने कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड लिया, कोई कार्बन का कंपाउंड लिया, या हाइड्रोजन भी उसमें इंक्लूड कर दिया, तो तीनों का मिक्सअप है, लेकिन उनका मास नंबर सेम होना चाहिए. 2 ऐसे कंपाउंड आपको चूज करने हैं जिसको मास डबलेट कहते हैं. उनको आपने डाला, अब आपके पास हाइड्रोजन का मास आ गया, कार्बन का मास आपने फिक्स कर लिया है, तो नाइट्रोजन का निकाल सकते हो, सल्फर का निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, क्लोरीन का निकाल सकते हो. यू कैन डू फॉर एनी मासेस. क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो मैं इस पेज को यहीं पे एंड करता हूँ, बिकॉज आई विल स्टार्ट विद न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. न्यूक्लियर को बाइंड करने की जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, उसको हम कैसे डिड्यूस करते हैं एक्सपेरिमेंटली, दैट वी विल डिस्कस. एंड वी विल डिस्कस सम ग्राफ्स एंड एंगुलर मोमेंटम. हो सकता है हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्या, नेक्स्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अभी करेंगे. Sir. ठीक है, हम बोलो.
एनी डाउट? बोलो। No, sir. ओके, तो नोट्स देने का घाटा तो नहीं हो रहा है कि बच्चे फिर सोच रहे हैं कि नोट्स तो मिल ही जाएंगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से कर लेंगे बाद में? लग रहा है सर ऐसा तो बच्चे नहीं आ है? ही नहीं रहे क्लास में। हाँ, या तो बच्चे सो रहे हैं या दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है पॉइंट कि मैं बस पढ़ा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, बस जो बुक में लिखा है पढ़ते जा रहा हूँ और वो क्लियर होता जा रहा है। हाँ? नहीं सर आ रहा है समझ में सर, सारा समझ आ में। रहा है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मतलब आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा है कि बिल्कुल पढ़ने में मजा नहीं आ रहा हो। ओके, नहीं सर बच्चों को ये है एज ना आई सेड, अटेंडेंस का नंबर नहीं लगेगा। हाँ अटेंडेंस के नंबर अब नहीं है तो बच्चे सोचते हैं कि अटेंडेंस नहीं है तो क्या मतलब, दे आर नॉट टुक द एडमिशन फॉर अटेंडेंस। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अटेंडेंस के लिए एडमिशन लिया था। बट में भी थर्ड ईयर तक बच्चे आते आते थोड़ा से बड़े ही रूटीन ऑर्डर में आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन से यही आने हैं, सर ने क्या नोट्स दे दिए हैं, चलो कोई नहीं, नोट्स मिल ही जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे। तो वॉट एवर, जैसा भी हो सिचुएशन। ओके, सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, एज आई हैव सेड अर्लियर कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एटम्स नोन है और एटम के मास हम मेजर कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव नेसेंट न्यूक्लियाई, और उन नेसेंट न्यूक्लियाई के हम मासेस की वैल्यू का हमें आइडिया नहीं लगता है। तो नॉर्मली व्हाट वी कैन राइट कि किसी भी एटम को ले लो, कोई एक्स एटम है, तो न्यूक्लियर मास Mn is nuclear mass of any atom whose A is A, Z and N. This is your symbol of the atom. And C square, उसका जो रेस्ट मास होगा, जो न्यूक्लियस का रेस्ट मास एनर्जी होगा, that must be equal to Z times MP. प्रोटॉन मास कितने हैं? Z है, उनको आपने C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी प्रोटॉन आपने जो इंक्लूड किया उनका आपने रेस्ट मास ले लिया, प्लस N M N। अच्छा, इस एन को हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं क्योंकि एक एन पहले ही आ गया है, तो न्यूक्लियर को हम स्मॉल लिख रहे हैं और कैपिटल एन जो लिख रहे हैं दैट इज योर न्यूट्रॉन। तो एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, यू विल अगेन मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, यानी रेस्ट मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स। एंड once you have done these two, what you can do, obviously जब आपने प्रोटॉन लिए, यानी हैंडफुल ऑफ प्रोटॉन आपने लिए, हैंडफुल ऑफ न्यूट्रॉन्स लिए, दोनों को कंबाइन करके एक बॉक्स में डाला, and that box has become a nucleus. Obviously that nucleus will have lesser mass compared to individual masses of all the protons and neutrons. हमेशा जब भी आप नेचर में देखोगे तो कोई भी कंपोजिट पार्टिकल का मास हमेशा कम होगा जो उसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के इंडिविजुअल मासेस होंगे। सो सम मासेस हैज बीन, यानी ये फॉर्मूला भी अनइक्वल है, ये फॉर्मूला इक्वल नहीं है, यानी ये मास ज्यादा है और ये वाला मास कम है। एग्री? एग्री? यस सर। तो इसका मतलब कि ये ज्यादा है ये कम है, तो इक्वेशन में मुझे यहाँ पे माइनस कुछ करना पड़ेगा, वही माइनस जो होता है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जो लॉस हुआ है मास का, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? आप जब एटम न्यूक्लियस फॉर्म, ये सिर्फ न्यूक्लियर के फॉर्म में लिख रहे हैं, हम अभी एटम का कुछ नहीं हमने यहाँ पे किया है। तो जब हमने न्यूक्लियस बनाया तो न्यूक्लियस में हमने Z नंबर ऑफ प्रोटॉन डाले और N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डाले और 1 बाय 1 डाले। जब हम 1 बाय 1 डाल रहे थे तो उनके इंडिविजुअल मासेस या उसकी रेस्ट एनर्जी को एज्यूम कर रहे थे, और जब हमने पूरा का पूरा न्यूक्लियस फॉर्म कर लिया, अब उसको हमने वे बैलेंस पे रखा तो दैट इज लेस, वो मास का ही मिस हो गया। जब हम इसको प्लेस कर रहे थे तो मास हैज मिस्ड,
हमने कुछ मिस कर दिया, बट जब मैं काउंट कर रहा हूँ तो उतने ही आ रहे हैं. तो that missing part is your binding energy. The energy which is required to bind these number of proton and neutron. And that is coming from nowhere, but it has to come from the mass energy conversion. यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से थोड़े थोड़े मासेस निकल करके दे बिकम एनर्जी टू बाइंड दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस. तो जो मास निकल के एनर्जी में कन्वर्ट हुए, यू कैन नॉट वे दैट, दैट हैज बीन लॉस्ट, दैट इज चेंज्ड इनटू एनर्जी फॉर्म एंड दैट यू कैन नॉट वेट. सो दैट मींस द न्यूक्लियस बिकम लाइटर. तो न्यूक्लियस थोड़ा सा मास में डिक्रीज हो गया है. वो जो डिक्रीज, अभी इक्वेशन बैलेंस हो गया, जो ज्यादा था उसमें से मैंने कुछ माइनस कर दिया, तो वो इस इक्वेशन से बैलेंस हो रहा है. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. It means the binding energy of the nucleus is nothing but it is, you take this in this side and this in this side. So that is ZMP C square plus NMN C capital N, sorry, minus MNXA ZN. ये हमारा फॉर्मूला बन गया, सॉरी C स्क्वायर भी आ गया. So this is your binding energy formula, but we have to wait. We can measure the mass of proton. हमारे पास सिंगल प्रोटॉन easily मिल जाते हैं. We can weigh the mass of neutron. सिंगल न्यूट्रॉन भी मिल जाते हैं. हालांकि न्यूट्रॉन का जो लाइफ टाइम है कितना है, नेसेंट न्यूट्रॉन का लाइफ टाइम आपको पता है कितना है? नो सर. 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड से ज्यादा न्यूट्रॉन नहीं रहता. It will decay. That will follow beta decay. हाँ, ऐसे वो स्टेबल है, जब न्यूक्लियस के अंदर वो स्टेबल है, बट फ्री न्यूट्रॉन यू कैन नॉट फाइंड फ्री न्यूट्रॉन, दैट इज अनस्टेबल. ओके, सो वी कैन मेजर. एटलीस्ट 10 सेकेंड बहुत ज्यादा है हमारे लिए मेजरमेंट करने के लिए. एंड वी डोंट नो दिस, ये तो हमें नहीं पता, न्यूक्लियर का मास तो हमें पता ही नहीं. तो नाउ वी विल राइट द न्यूक्लियर मास इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास. वी विल राइट न्यूक्लियर मास इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास. तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया ना, ये वाला फॉर्मूला, सेम एनालॉजी हम सेम यूज करेंगे टू फाइंड द न्यूक्लियर मास. It means what we will write? We will write atomic mass. Now this A is atomic mass of any atom is equal to nuclear mass of that atom plus what we will add with the nuclear. न्यूक्लियस में हम क्या ऐड करते हैं? तो एक एटम बनता है इलेक्ट्रॉन. Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू विल ऐड. यानी आपने एक नेसेंट न्यूक्लियस उठाया, उसको आपने थोड़ा सा न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से आपने फिलअप किया एंड इट बिकम अ एटम. अगेन इफ इट इज इंडिविजुअल एंड ये आपने अलग से लिया, तो इट मींस दैट टोटल मास विल बी मोर एंड दिस एटम मास विल बी लेस. एंड दैट why, how much less? That is binding energy of all the individual electrons. आपने जब इलेक्ट्रॉन बाइंड करना शुरू किया ना, तो वहां पे जो एनर्जी आपको इन्वेस्ट करनी पड़ी, that has to be subtracted from this particular term. ठीक है? Is it okay? And what you can do, you can use, because you need this mass, now you can use this formula, this total formula. इसमें आप इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ और उसको यहाँ पे डाल दो, तो सब कुछ एटॉमिक मास में आ जाएगा. इट मींस बाइंडिंग एनर्जी will be equal to Z number of MP C square plus N number of mass of neutron C square minus MN, so that will be minus MA.
XAZNc²। ये इधर आया था माइनस साइन के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा। ये इधर आया था तो माइनस हुआ था ना, और फिर ये माइनस साइन लगा हुआ है तो इट विल बिकम प्लस। ये माइनस था, इधर आया तो प्लस हुआ, फिर माइनस साइन लगा तो इट विल अगेन बिकम माइनस। This is clear. This formula is clear. Yes or no? हाँ या बताओ। Yes, sir. Now you see two z component, यहाँ पे z वाले दो हैं तो इन दोनों को ऐड कर दो। n के साथ कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं तो n को ऐसे सच रहने दो। And Ma minus binding energy, मैं summation लिख रहा हूँ, that is Bi, that is binding energy for all the individual electrons. What is this? Mass of hydrogen. Very good. कोई टर्म में भूल गया है लिखना? Binding energy of electrons. This is an electron volt, and if you have 100 electrons, so they will make up 100 electron volt, not more than that, or maybe 200 or 300, maybe kilo electron volt. But these value are in several thousand mega electron volt, so you can neglect that. ये बहुत ज्यादा है, सारे नंबर्स जो है ना, अगर एक्चुअली कंपेयर करोगे तो इवन सिंगल प्रोटॉन या सिंगल न्यूट्रॉन के लिए भी दिस इज अ ह्यूज नंबर. So that is why we can neglect this term, which is of electron volt. These are in hundreds of mega electron volt. So you can neglect those numbers. So they are just removed. Otherwise, अगर exact calculation करना है तो you have to include this. If you want to do exact calculation, you have to include this. Otherwise, you can say that this is roughly equal to this one. Okay. So what we can see, we can plot the binding energy of different nuclei. But binding energy अगर plot करोगे ना इस फॉर्मूले से, मीन्स ए के साथ बाइंडिंग एनर्जी का, तो उस ग्राफ को देख करके कुछ मजा नहीं आएगा. इट विल जस्ट इंक्रीजिंग, कुछ आइडिया नहीं लगेगा. बट इफ यू प्लॉट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट विल गिव यू अ सर्टेन गुड पिक्चर कि न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी कैसा होता है. बाइंडिंग एनर्जी विथ ए इज ऑफ नो यूज, उससे कुछ आउटकम नहीं आता है, स्ट्रेट भी नहीं आएगा. यू कैन प्लॉट, यू कैन लुक एट दैट ऑल्सो. आई कैन शो यू, मैंने वो कैलकुलेट कर रखा है डिफरेंट एटम के लिए, तो आई कैन शो यू. वन मोर थिंग, एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज नहीं करते हैं. जस्ट इमेजिन कि उसने एग्जांपल दिया था किसी क्रेन में शायद है. इफ यू आर देयर इन द क्लास, Yes, sir. okay, so for a electron its rest mass is 0.51 mega electron volt. If its kinetic energy is comparable to this value, में अगर इसकी kinetic energy 1 mega electron volt भी है इलेक्ट्रॉन की, तो you have to use relativistic formula. But when you're dealing with a nucleus is several proton or several neutron. Even you take the case of one proton, प्रोटॉन का रेस्ट मास एनर्जी होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 931,000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रफली, यानी उसका रेस्ट मास ही इतना ज्यादा है. यानी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं प्रोटॉन का, अगर मैं 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी रखता हूँ, जैसे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल की भी रेस्ट मास बहुत ज्यादा है, 4 प्रोटॉन है, मतलब 4, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है, तो रेस्ट मास इज गुड वैल्यू. सो इफ आई कीप दिस नंबर
टू प्रोटॉन का अगर मैं 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी रखी है मैंने, अगर इवन 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी रखी है, तो दैट इज लेस देन दिस वैल्यू 10 टाइम्स। तो यहाँ पे मुझे रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो न्यूक्लियस के केस में अगर आपकी एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 मेगा इलेक्ट्रॉन और 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, तो you cannot use relativistic, you can avoid that because rest mass of nucleus is very large. सिंगल प्रोटॉन का ही 1 गीगा होता है, तो मल्टीपल प्रोटॉन्स मल्टीपल न्यूट्रॉन्स के तो और ज्यादा होंगे। और इलेक्ट्रॉन के केस में वी हैव टू यूज बिकॉज उसका रेस्ट मास ही बहुत कम है, 0.5 है। और अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यानी बीटा पार्टिकल वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की वैल्यू होती है उसकी एनर्जी की, तो यू हैव टू यूज रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला। क्लियर? यस सर। ओके। अब एक और चीज इसी मास में, पहले बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मास से रिलेटेड है और एनर्जी से रिलेटेड है, इफ यू मेक एटम, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम जो होता है, यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन के केस के लिए हम नॉर्मली कहते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन को हम अटैच करते हैं, तो दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज वेरी लो। मीन्स रफली अगर एटम का रेस्पॉन्स एनर्जी देखोगे तो दैट इज वेरी लार्ज। तो दिस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम इज रफली ऑफ दिस वैल्यू which is 10 to the power of minus 8 times of rest mass of atom. Binding energy of nucleus, which is of 100 or tens of or hundreds of mega electron volt, और mega electron volt में range में है, but at least 10 to the power 2-3 के आसपास का है, which is around 10 to the power of minus you can say 4 times or 3 times of rest mass of nuclei है। सो न्यूक्लियस का अगर रेस्ट मास निकालते हो उससे थोड़ा कम होता है आपका बाइंडिंग एनर्जी, कम होगा, ऑब्वियस होगा। रेस्ट मास अगर कैलकुलेट करो तो इंडिविजुअल मासेस लोगे, उसको कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी लेस देन दिस वैल्यू। इफ यू गो फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, व्हाई आई कैन से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज ये प्रोटॉन इज अ कंपोजिट पार्टिकल, इट इज मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स। तो 3 quark मिल करके they are making a proton, so we can say a binding energy of proton also, we can have that factor, we can have that particular factor कि हम कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करता है। प्रोटॉन को जब ब्रेक करोगे तो यू कैन मेजर दैट वैल्यू, दैट वैल्यू इज वेरी लो। मींस जो कोई पूछना चाहता है या सिर्फ माइक ऑन हो गया? ओके, so that will be roughly 99%, sorry 1% of total, 1%, 1% means 10 to minus 2 के आसपास की वैल्यू होगी रेस्ट मास ऑफ दिस क्वार्क। तो इमेजिन करो जब हम इन वैल्यूज को डील करते हैं कि आप मासेस को, जैसे बाइंडिंग एनर्जी जब भी कैलकुलेट करते हो तो मास इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, मास को अवॉइड नहीं कर सकते। और डिफरेंट यानी एटम का बाइंडिंग एनर्जी उसके रेस्ट मास से बहुत कम है, न्यूक्लियर का बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है उसके रेस्ट मास से, और जो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन का भी बाइंडिंग एनर्जी और थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है आपके रेस्ट मास से। अगर सिर्फ क्वार्क का एग्जांपल लो कि, और एक चीज और हमने देखा कि जब हम Z का मास और न्यूट्रॉन का मास इंक्लूड करते हैं, जो हमने न्यूक्लियर बनाया वो लाइटर बनता है, यानी उन दोनों के मासेस से कम होता है। जब हम एटम भी बनाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियर से, तो वो भी कम होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कम नहीं होते, एटलीस्ट कंपेरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा कम नहीं होते, बहुत माइन्यूट। डेल्टा एम की वैल्यू बहुत कम होती है, फ्रैक्शन में भी होती है। बट इफ यू गो फॉर क्वार्क, व्हाट हैपेंस कि क्वार्क का प्रेडिक्टेड मास क्रेन में जो मेंशन्ड है, आई गेस कि वो शायद 10 टाइम ज्यादा लिख रखा है, लेकिन एक जगह उसने 10 लिखा है, एक जगह 100 लिखा है। इवन इफ आई टेक 10, यानी इंडिविजुअल क्वार्क का जो रेस्ट मास है इस इज रफली 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक प्रोटॉन का कितना था? 1 गीगा। ऊपर लिखा ना अभी हमने 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1 गीगा रफली। ऊपर लिखा था ना अभी, दिखा दूं फिर से, ये रहा, एक सेकेंड। यस सर।
Here I have written this one. So this is roughly 1 giga. ठीक है, this is roughly 1 giga. And एक आपके क्वार्क का मास है 10 गीगा. तो ऐसे से 3 क्वार्क हैं एक प्रोटॉन में, तो रफली हो गया. लेट मी जस्ट यूज द पेन का सिलेक्शन हट जाता है. ओके, सो दैट इज रफली, इट मींस 30 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेस्ट मास है एक पर्टिकुलर प्रोटॉन में. जब ये तीनों पार्टिकल यानी 10 गीगा 10 गीगा 10 गीगा के पार्टिकल कंबाइन होकर व्हेन दे फॉर्म मास ए सिंगल प्रोटॉन, its mass is only 1 giga. See the difference, 29 giga has lost. न्यूक्लियस के फॉर्म में ये एनर्जी नंबर कम होता है, एटम के फॉर्म में ये एनर्जी नंबर और कम हो जाती है, परसेंटेज डिक्रीज होती जाती है. रेस्ट मास का कितना परसेंट आप लोगे, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज यू गो इन अपर हायरार्की. न्यू प्रोटॉन से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एटम. तो रेस्ट मास और बाइंडिंग एनर्जी के कंपैरिजन में क्लोजनेस डिक्रीज होती जाती है जब ऊपर पहुंचते हो. क्लोज में आते हो तो इमेजिन दिस नंबर, 99% ऑफ रेस्ट मास एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. जो रेस्ट मास का वैल्यू था ना वो 99%, नहीं सिर्फ 1% बच गया मास. इमेजिन आपने एक बैग में 10 केजीज के 3 बॉल डाले और उस बैग का वेट 1 केजी है. इमेजिन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. आपने एक बैग लिया, उसमें 10 केजी के 3 बॉल डाले, जब उस बॉल अपने उस बैग को वे किया तो 1 केजी का निकला. 29 केजीज आपके लॉस हो गए. दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. सो दिस इज व्हाट थिंग विच यू कैन रिमेम्बर कि हाँ भी ऐसे ऐसे हम बाइंडिंग एनर्जी, अब हम छोटे एंटिटी में जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी का कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है मास के कंपैरेबल. Okay, I just share one more file, which is Excel file, and I can show you the binding energy per unit, means per nucleon with respect to nucleon. So let me just share that file, and we can finish off with that particular graph. कि उस ग्राफ में है क्या, उस ग्राफ का यूज क्या है. उस ग्राफ से हमें बहुत सारी चीजें पता भी चलती हैं. Let me just open the file. Someone has asked question. नहीं, क्वेश्चन नहीं है. ओके, okay, this is the data which I have collected. I have Z, N number, A, masses, which is from crane, then binding energy, and these data is concerned with their models. जब हम models करेंगे ना, liquid drop model, the volume, surface, coulomb term, then liquid drop model, then asymmetric term, pairing term, and then your final semi-empirical mass formula. तो बाद में कंपैरिजन उसका देखें. अभी हमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है वो है ये, your A number and your binding energy, which can be calculated by the formula which I have given you. Yani mass of hydrogen Z times minus plus mass of neutron N times minus mass of that particular atom and multiply with C square. So that is something like an experimental formula, you can say, or empirical formula, which is concerned with the experimental result which you have measured for the different nuclei, whatever the binding energy you have measured. So that is the basic formula. Oh, this is plotted with something else. Okay.
No, it is plotting with this one, which is A. I have to plot with A. Why it is getting selected with this one? Just wait. No, I have to select this data. Why it is getting again copied and copied? Data कैसे change करते हैं इसका selection? किसी को आता है Excel? ये वैल्यू उतनी नहीं है जितनी आनी चाहिए थी. ओके आई एम गेटिंग द रॉन्ग डेटा. मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन प्लॉट करना है. Yes. Okay, this is the curve. Binding energy per nucleon. So you can look at the binding energy per nucleon, which is normally it increases for a lighter nuclei. Drastically, it is increasing from 1 to roughly 9 or 8 something, and then it start decreasing, and it decreases not drastically, very gradually. Means there is a saturation. जो saturation की बात मैं कह रहा था ना उस समय की saturation effect होता है nucleus में. So that is this one. The binding energy increases, becomes saturated, and then it decreases gradually, very gradually, not dropping very fast. तो जैसे increase था वैसे drop नहीं था. So it is something like a saturated. At lower side, when you look at the energy, when the binding energy per nucleon is increasing, there is a possibility. इस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करने का आता है. 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो इस ग्राफ को कि क्या क्या हमें इस ग्राफ से पता चलता है. तो व्हाट वी एबल टू सी कि इफ आई फ्यूज लाइटर न्यूक्लियाई, means if you add 2 nuclei and fuse them, you get a bigger nuclei. Means the nuclei which is formed by fusing is of a better binding energy per nucleon. So fusion is possible at the lighter part of this curve. यानी जहाँ पे lighter nuclei है ना वहाँ पे possible है fusion का. यानी फ्यूज करोगे तो आपको जो न्यूक्लियाई मिलेगा उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेटर होगा. तो न्यूक्लियस विल ट्राई मींस विल दे विल ट्राई टू फ्यूज देमसेल्फ. बट व्हेन यू लुक एट दिस पार्ट, if you try to break the nuclei into two part in two fragment, means fission if you want to take, क्या आपने किसी न्यूक्लियर लिया न्यूक्लियस को उसको फिशन किया यानी ब्रेक किया आपने, तो ब्रेक करने पे दे बिकम लाइटर, and when they become lighter nuclei, their binding energy per nucleon increases. It means fission is feasible at this particular area. तो इनिशियल जो एरिया थे उसमें फ्यूजन की पॉसिबिलिटी है, जो आपका हेवी न्यूक्लियाई के साइड है उसमें आपके फिजन की पॉसिबिलिटी है, और आप जब यहाँ पे पहुंच जाते हो सेंटर पे जहाँ पे कि आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमाइज्ड, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो वहां पे फिजन और फ्यूजन की पॉसिबिलिटी नहीं होती. इट मींस नॉर्मली जो हमारा सबसे बेस्ट एटम क्या होता है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, कौन सा एटम है? आयरन Fe. आयरन Fe. आयरन से भी अच्छा है कोई एटम? दिस वन आयरन ये रहा 26, 30, 56. its binding energy per nucleon is 8.79, and in nature we have a stable atom of this Z value, which is nickel, 8.795, which is better than iron. बट हाँ नेचर में हार्डली 1% ही एग्जिस्ट करता है, उससे ज्यादा नहीं. तो नेचर में इसका अबंडेंस इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू आयरन. एंड व्हाई वी हैव आयरन such a huge value of binding energy per nuclear? Why we are having? Is there any reason or it is just usual कि वो ग्राफ आना था ऐसा ही था कुछ इसलिए आ गया? Or is there any specific reason?
सर वो मोस्ट स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, that is one thing, but it becomes stable. All the laws has been made in such a way कि आयरन आपके पास सबसे स्टेबल आ गया। सारे जो लॉ थे ना, इस तरीके से काम किया उन्होंने कि दैट बिकम स्टेबल। और वो सारे लॉ क्यों ऐसे काम कर पाए कि यू गॉट द मोस्ट स्टेबल एंड बूस्ट बेस्ट, इसलिए कह रहे हैं कि आयरन की शक्ति होनी चाहिए। ऐड में आते नहीं, आयरन की शक्ति चाहिए। तो वाई आयरन इज सो इम्पोर्टेंट। निकल भी है, निकल का फॉर्मेशन भी, निकल इज गुड, बट निकल एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत कम है। उसका रीजन है कि उसको फॉर्मेशन जो जिस न्यूक्लियर को फ्यूज करने से निकल बनता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो स्टेबल ही नहीं है, तो खुद ही नहीं बन पाता ठीक से। बट आयरन हमारे पास एविडेंस में है, तो वी कैन रिलाई कि भी आयरन ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। व्हाई दैट इट इज सो। सर सर आयरन बाइंडिंग बनता कहाँ एनर्जी है? पर हाँ, न्यूक्लियर बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी वो सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा। उसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन तो वही है कि ऐसा क्यों है, उसका इतना ज्यादा है क्यों? किसी और को क्यों नहीं हुआ उतना ज्यादा? या सारे लॉ ने इस तरीके से काम क्यों नहीं किया कि वो वहां तक चला जाए? सारे लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ऑल द न्यूक्लियर बेसिक लॉ, कंजर्वेशन लॉ, और बहुत सारे लॉ आपके मैटर करते हैं, बट देयर इज वन मोर थिंग विच यू आर लैकिंग। Sir, binding energy depends on the number of proton and neutron in nucleus. As we increase the number of nucleons, binding energy trend should increase. But for higher number of value, proton-proton repulsion will be more. यस, ओके, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स। बनता कहाँ है आयरन, ये बताओ पहले। देखो, लॉ जो हमने बनाया ना, हमने एविडेंस थे, उसके बेसिस पे हमें एम्पिरिकल लॉ बनाया। दैट वाज एग्जिस्टिंग, हमारे लॉ बनाने से पहले भी आयरन एग्जिस्ट कर रहा था। तो लॉ तो हमने उसके स्टडी, उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद भी हमने लॉ बनाया कि ऐसा फॉर्मूला वैलिड है इस पर्टिकुलर केस के लिए। कहाँ बनते हैं आयरन? टाटा स्टील फैक्ट्री। कहाँ बनते यस सर। हैं? यस सर। ये देखो आ भी कह रहा है, आयरन आर वन ऑफ द लास्ट एलिमेंट which can be made in the nature's strongest furnace, that is stars. You cannot fuse iron further, और स्टार अभी तक ऐसे बने नहीं कि आयरन को फ्यूज कर जाए। इस नेचर में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फर्नेस है ना, जिसका टेम्परेचर 10 लाख समथिंग केल्विन, मिलियन केल्विन तक पहुंच जाता है, आयरन इज मेड इन दोस पर्टिकुलर फर्नेस एंड इट इज द लास्ट एलिमेंट। ऑब्वियसली सारे लॉ हमारे पास हैं, हम कह सकते हैं कि इस कारण से हैं, उनके एसिमेट्रिक है, उनके अरेंजमेंट है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का आपस में रिलेशन है, फिर उसके बाद प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो रिपल्शन होगा, ऑल दीस थिंग्स आर देयर, बट आयरन इज द लास्ट एलिमेंट दैट कैन बी मेड इन अ स्ट्रॉन्गेस्ट फर्नेस इन द नेचर। उससे बड़ा फर्नेस हम बना भी नहीं सकते, बन भी नहीं सकता स्टार। तो दे आर मेड इन अ वेरी टाइट फॉर्म, मींस इतना ज्यादा टेम्परेचर था, उनको फ्यूज किया। बंदा किससे? आयरन, सिलिकॉन के बर्निंग से। तो सिलिकॉन जब बर्न करता है तो सिलिकॉन का जो आपस में कोलिजन होता है, तो सिलिकॉन को भी उसने क्या किया, स्टार ने बम्बार्ड किया ऑन ईच अदर एंड दे गेट वेरी टाइटली बॉन्डेड। उसके बाद स्टार की भी पॉसिबिलिटी नहीं कि आयरन को फ्यूज कर सके। अगर ऐसा कोई स्टार होता जिसमें आयरन भी फ्यूज हो जाते तो लॉ वुड हैव चेंज। आयरन के स्ट्रॉन्ग होने का रीजन है, इट इज मेड इन द, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसिंथेसिस। दीज एटम्स, जो आपके आयरन तक के एटम, यानी आयरन निकल कोबाल्ट तक के एटम जो है, they normally form in the nucleosynthesis. आयरन तक फॉर्म करता है, निकल भी नहीं फॉर्म करता है। आयरन तक के एटम आपके, जो आपका स्टार है ना, उसके कोर में फॉर्मेशन होता है। और आप जो बम्प्स देख रहे हो ना, आप बाइंडिंग एनर्जी में पहला बम्प आपको हीलियम पे दिखता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन पे दूसरा बम्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे तीसरा बम्प, फिर नीचे आप आए, फिर ये जो बम्प्स दिख रहे हैं ना, दीज बम्प्स आर एंडिंग प्रोडक्ट इन द न्यूक्लियर फ्यूजन्स।
हाइड्रोजन जब बर्न करता है तो हीलियम का फॉर्मेशन होता है। हीलियम सारे बर्न नहीं कर जाते हैं। जब हीलियम की बर्निंग होती है तो डिफरेंट एटम, देखो लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो गया, लिथियम फॉर्म होता है लेकिन नॉट इन अ गुड परसेंटेज, और सारे हीलियम कंबाइन नहीं कर जाते हैं, बहुत सारे हीलियम आपके लेफ्ट ओवर रह जाते हैं एंड दे फॉर्म द नेक्स्ट स्टेबल एटम दैट इज कार्बन। उसके बाद फिर से फ्यूजन रिएक्शन बंद होता है, फिर फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए कार्बन की बर्निंग स्टार्ट होती है, फिर ऑक्सीजन की बर्निंग होती है, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से सिलिकॉन की, ऑक्सीजन के बाद शायद कोई एटम आता है बट आई थिंक दैट इज, आई डोंट रिमेम्बर, कोई एटम है एक। देन कम टू द सिलिकॉन, देन सिलिकॉन की बर्निंग पे आपका आयरन फॉर्म होता है। आयरन की बर्निंग स्टार्ट नहीं हो सकती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड ऑल द रेस्ट एटम्स, अब आयरन आपका मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे पहुंच गया, बाकी जितने आपके एलिमेंट्स दिख रहे हैं दे आर नॉट फॉर्म्ड इन द कोर ऑफ द सन और कोर ऑफ द स्टार, दे आर फॉर्म्ड वेयर, कहाँ बनते हैं ये सारे? बनते हैं या नहीं बनते? नेचर में तो है, लेड भी मिलता है, यूरेनियम मिलता है, मरकरी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, पोटैश, सब कुछ मिलता है, निकल, नेचुरल कोबाल्ट, सर। गोल्ड, सिल्वर। हाँ बोलो, नेक्स्ट क्लास में। जल्दी बताओ, इसके बाद मैं फ्री कर दूंगा। ये कहाँ बनते हैं? उसके बाद फ्री हो, इसका आंसर देने के बाद फ्री। They are formed in the supernova explosion. They are formed in the supernova. Supernova सुना आपने? सुना ही होगा मेरे ख्याल से, ऐसा तो नहीं कि नहीं सुना होगा। Have you heard? Yes, sir. तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में सारे एटम्स बनते हैं। इट मींस सोलर सिस्टम बनने से पहले यहाँ पे सुपरनोवा हुआ था, तभी हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, यूरेनियम, सारे एलिमेंट, लेड वगैरह हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी सोलर सिस्टम बनने से पहले यहाँ पे सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ था। This we end with this one, and next we will start with the angular momentum of nuclei. Okay, so I'm stopping the recording.